Hi guys, you are most welcome in economic session. This time I have brought a pleasant surprise for you. I know you all are desperately waiting for it. On public demand, I have started with MCQ series. 10 to 12 MCQs will be uploaded in each video. All the students will get benefit from it who are preparing for their college exams or competitive exams. As nowadays, in every exam MCQs are asked. It may be online exam or offline exam. So let's start without delay anymore. Watch complete video and note down your answer, and after that you can see the correct answer. Okay? In this way you will have a mastery on this particular chapter. Try to answer the correct option and enjoy your learning. So let's move on. The first quiz is based on the chapter Circular Flow of National Income. We'll see the first question. The continuous flow of factors, money, goods and services between firms and household is known as. There are four options here. First, two-sector circular flow of national income. Second option, three-sector circular flow of national income. Third option, consumption function. And fourth option, four-sector circular flow of national income. तो यहाँ पे सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम की बात हो रही है. तो सर्कुलर फ्लो ऑफ फैक्टर्स, मनी, गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर बिटवीन टू सेक्टर्स. व्हाट आर दोज टू सेक्टर्स? फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स. तो क्वेश्चन से ही क्लियर है गाइज हियर कि इट इज टॉकिंग अबाउट टू सेक्टर सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम. Why two sectors? Because there are two sectors mentioned in the question. What are those two sectors? Firms and household. So the correct option is A. We'll see the next question. Which is known as real flow in the circular flow of national income? Options हैं flow of income, flow of factor income, flow of prices of goods and services, flow of factors and goods and services. Guys, आपने circular flow of national income पढ़ा है तो आपको पता होगा there are two types of flow, money flow and real flow. ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ रहा है what is real flow? Real flow means the flow of real things, commodities, services and factors. So the right option is D. Flow of factors and goods and services is known as real flow. Other options are related to money flow. Let's move to the next question. Firms are the production units and households are what? Options दिया हुआ है A. income unit, B. consumption units, C. business units, D. investment units. सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में हमने देखा है फर्म्स एंड हाउस होल्ड्स आर देयर इन टू सेक्टर मॉडल. ठीक है, तो फर्म्स को हम प्रोडक्शन यूनिट्स भी बोलते हैं क्योंकि वहां पे मैन्युफैक्चरिंग होता है. हाउस होल्ड्स इज नोन एज व्हाट? हाउस होल्ड इज नोन एज कंजम्पशन यूनिट्स क्योंकि कंज्यूमर्स बिलोंग टू हाउस होल्ड्स. ओके, सो द करेक्ट आंसर इज बी, कंजम्पशन यूनिट्स. Now the next question, which one is not the sector in four sector model of circular flow? कौन सा फोर सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो में नहीं होता है? ठीक है, ऑप्शंस देखते हैं. A. इट इज फॉर्म, B. हाउस होल्ड, C. फॉरेन सेक्टर, D. प्राइमरी सेक्टर. तो गाइज हियर ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. क्या होगा करेक्ट आंसर इसका? हियर वी आर टॉकिंग अबाउट फोर सेक्टर मॉडल. ठीक है, तो फोर सेक्टर मॉडल में कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं? अगर आप रिकलेक्ट करो इस चैप्टर को तो कौन कौन से सेक्टर्स होते हैं फोर सेक्टर में? फोर सेक्टर्स मॉडल में सेक्टर्स होते हैं फर्म, हाउस होल्ड, गवर्नमेंट एंड फॉरेन सेक्टर. तो गाइस हियर ये तीन ऊपर के तीन ऑप्शंस हैं, मीन्स करेक्ट है, ये होते हैं फोर सेक्टर में. कौन सा सेक्टर नहीं होता है? दैट इज प्राइमरी सेक्टर. सो द करेक्ट आंसर इज डी, इट इज प्राइमरी सेक्टर.
Primary sector is not mentioned in the circular flow of national income chapter. Next question, closed economy means. Closed economy का मतलब क्या है? We all know that there are two types of economy, closed economy and open economy. Closed economy का मतलब होता है कि the economy which has not having international relation or international interaction. ठीक है, तो closed economy का आंसर क्या हो सकता है यहाँ पे? Absence of international trade. Closed economy में there is no role of international trade. International trade का किस में रोल होता है? ओपन इकोनॉमी में. इफ इंटरनेशनल ट्रेड इज इंक्लूडेड इन द इकोनॉमी then economy becomes open economy. Okay, so the right answer is A. चलो देखते हैं next question. Which of the following is not an injection in the circular flow of national income? यहाँ पे 4 ऑप्शंस में से आपको बताना है कि कौन सा इंजेक्शन नहीं है सर्कुलर फ्लो ऑफ नेशनल इनकम में. इंजेक्शन का मतलब क्या? इंजेक्शन का मतलब मनी फ्लो. ठीक है, मनी फ्लो इन द इकोनॉमी. किस ऑप्शन से पता चलता है कि इकोनॉमी में मनी फ्लो नहीं होता है? ठीक है, इंजेक्शन नहीं होता है. तो हम लोग ऑप्शंस देखते हैं वन बाय वन. ऑप्शन ए, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर. ये इंजेक्शन है क्योंकि जब गवर्नमेंट स्पेंड करती है फॉर इकोनॉमी, इट इज नोन एज द सर्कुलेशन ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. इट सर्कुलेट्स मोर एंड मोर मनी इन द इकोनॉमी. Second option, government salaries paid to civil servants. This is also injection. When government pay the salaries to the people, people get money, and out of that money they purchase their goods and services. So it is responsible for money flow in the economy. So ये injection है. Third option देखते हैं, government taxation. Government taxation is not the injection in the economy. इंजेक्शन ऑफ मनी इज नॉट देयर ड्यू टू टैक्सेशन. जब गवर्नमेंट टैक्स इम्पोज करती है तो इनकम ऑफ द पीपल इज रिड्यूस्ड, परचेसिंग पावर ऑफ द पीपल इज रिड्यूस्ड, सो मनी फ्लो इन द इकोनॉमी इज रिड्यूस्ड. सो टैक्सेशन इज एक्चुअली लीकेज, नॉट द इंजेक्शन. सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, what will happen to national income and the size of the economy if G plus I plus X is greater than T plus S plus M? अब यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है. We'll see here what it denotes. G for government expenditure, I for investment, X for export earning. T denotes taxation, S denotes saving, and M for import payments. Okay. तो गाइस हियर वी कैन अंडरस्टैंड इट इजीली. जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट अर्निंग ज़्यादा है टैक्स सेविंग एंड इम्पोर्ट पेमेंट से, इट मीन्स इकोनॉमी इज एक्सपैंडिंग. मोर एंड मोर मनी इज सर्कुलेटिंग इन द इकोनॉमी. सो द करेक्ट ऑप्शन विल बी सी, एक्सपैंड. Next question, what will happen to national income and the size of the economy if G plus I plus X equal T plus S plus M? This equation is the similar of the previous equation. यहाँ पे difference सिर्फ ये है कि यहाँ पे दोनों side equal है. Means total income is equal to total expenditure. तो यहाँ पे we can say that it denotes economy is in equilibrium. Correct option is A. Let's move to the next question. Which one of the following is an injection into the circular flow of income? यहाँ पे भी एक इंजेक्शन वाला क्वेश्चन है. तो नाउ गाइज यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. क्या होगा इंजेक्शन? फर्स्ट ऑप्शन पर्सनल इनकम टैक्स, सेकेंड ऑप्शन गवर्नमेंट परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज, थर्ड ऑप्शन इंपोर्ट्स एंड फोर्थ ऑप्शन बिजनेस टैक्स. इंजेक्शन क्या है? पहले जो क्वेश्चंस में देखा हमने वो कौन सा था जो इंजेक्शन नहीं था. यहाँ पे इंजेक्शन है. हाउ मनी इज
increasing in the economy. It is the inflow in the income, money flow of the, there is a money flow in the economy. पर्सनल इनकम टैक्स, टैक्स इंजेक्शन नहीं हो सकता है, हमने पहले भी देखा था ये, क्योंकि ये लीकेज है. इट रिड्यूसेस द परचेजिंग पावर ऑफ द पीपल. सेकेंड ऑप्शन, गवर्नमेंट परचेज ऑफ फैक्टर सर्विसेज. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, because when government purchase the factor services, government makes payment for it, and in this way it circulates money in the economy. So it is the injection. Third option, imports, is again leakage, not the injection. And fourth option is related to tax, so it is also leakage, not the injection. So the correct answer is B. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट इज करेक्ट. यहाँ पे 3 स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन इज फ्रॉम फॉर्म टू हाउस होल्ड. क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट है? गाइस, अगर आप सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम चैप्टर रिकलेक्ट करते हैं तो आपके इमेज में एक डायग्राम आता है. दैट डायग्राम शोज how money and real flow circulates in the economy from one sector to another sector. तो आपको यहाँ पे डायरेक्शन याद करना है कि फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डायरेक्शन किधर से किधर को होता है. क्या फ्लो ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का डायरेक्शन फर्म से हाउस होल्ड को होता है? नहीं, ये करेक्ट ऑप्शन नहीं है. फैक्टर्स फर्म से हाउस होल्ड को नहीं जाते, बल्कि हाउस होल्ड से फर्म्स को जाते हैं. सो फर्स्ट ऑप्शन इज इनकरेक्ट. सेकंड ऑप्शन, द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड. यस, दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विसेज के फ्लो का डायरेक्शन होता है फर्म से हाउस होल्ड की तरफ. फर्म्स मैन्युफैक्चर द गुड्स, सर्विसेज एंड प्रोवाइड्स टू द हाउस होल्ड सेक्टर. ठीक है, तो सेकेंड ऑप्शन इज द करेक्ट स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट भी देखते हैं. द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम इज फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म. फ्लो ऑफ फैक्टर्स इनकम मीन्स फैक्टर इनकम के फ्लो का डायरेक्शन किधर से किधर को होता है? फ्रॉम हाउस होल्ड टू फर्म होता है क्या? नहीं, फ्रॉम फर्म टू हाउस होल्ड की तरफ होता है. तो ये अपोजिट है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट ऑप्शन है. सो द करेक्ट आंसर इज बी. द लास्ट क्वेश्चन गाइस, व्हाट इज द लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. अभी तक हमने इंजेक्शन की बात की थी. जब हमने इंजेक्शन को एक्सप्लेन किया था तब लीकेज को भी बताया था. तो यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सा यहाँ पे लीकेज है. विच ऑप्शन इज लीकेज इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. ट्राई टू गिव द करेक्ट आंसर. ऑप्शंस आर देयर. फर्स्ट, एक्सपेंडिचर. सेकेंड, सेविंग. थर्ड, एक्सपोर्ट अर्निंग. एंड फोर्थ, गवर्नमेंट परचेज. तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है सेविंग. सेविंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लीकेजेस इन द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम. क्योंकि जब हम सेव करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पैसा, तो वो पैसा इकोनॉमी में सर्कुलेट नहीं होता है. ठीक है, एंड टू दैट एक्सटेंट फ्लो ऑफ national income is reduced in the economy. All other options are injection in the economy. Okay, expenditure, export earning, government purchase, all these are injection. Only यहाँ पे saving option है जो leakage है. So guys, hope you have enjoyed this session and आपको circular flow of national income के concepts और भी clear हो गए होंगे while solving this MCQ. Thank you very much. Have a nice day.